Hello everyone there, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter 3rd, that is impressive web designing. In today's lecture we are going to start new tag, that is form. So this is the last topic of this chapter. So today we are going to see the theory part, that is what things are included in forms for writing the coding. So in the next lecture, we will see the actual coding of the form. So let's begin. In, in today's lecture, we are going to study forms, attributes of form tag, input tag, attributes of input tag, text area tag, and lastly we will see select an option tag. So by seeing all these things, don't get confused that what are all these tags. This all are the parts of form itself. So this text area, select an option, all these things, input tag, this all comes with form tag itself. When we will see the actual coding, that time the idea about all this tag will be very clear to you. So now let us see one by one. First thing which we are going to see today is forms. It is very important. Nowadays you fill many of the forms online. Whatever forms you fill online on the website, whatever forms you are filling, right, you are filling in your name, your address, your mobile number, then standard, gender, all these things, all this data entry form, all these forms, they are created using this form tag itself. जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, जब आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे जब आप आपका नया लॉगिन क्रिएट करते हो, दैट टाइम फर्स्ट यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ योर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग, राइट. So that data entry form, that data should be entered by the user. That form is nothing but that form we are creating by using this form tag. ओके वो फॉर्म हम किस तरह से बनाते हैं वेबसाइट में, फॉर्म टैग का यूज करके हम लोग वो सब डेटा या फॉर्म बनाते हैं. ओके, सो सी forms in HTML is used to accept user input. So what is the use of form? Whatever data is given by the user, that we should intake. ओके वो इनपुट हम लोग यूजर से लेते हैं. दैट for that purpose we are using forms. Whatever data you are accepting from the user, or whatever data is entered by the user, that is the help of the forms. In form is a collection of different elements, also called as controls, like text box, radio button, check box, submit button, and many more. A form is a collection of different elements. Now see, whenever there is any form, that time you can see different elements which we call as a controls. Like what you can say, see, when name is given, then that time you are entering the name. So the box which will be empty in front of the name, जो बॉक्स नेम के सामने होता है उसमें आप नेम एंटर करते हो, उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स. इट इज अ सिंगल लाइन बॉक्स, वहां पे ज्यादा टेक्स्ट लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है. सो दैट इज अ टेक्स्ट बॉक्स. Then if it is asking for the gender, that time already they are giving you the gender as male, female, right? So from that you have to select any one option. So that is what, that is radio button. Radio button हमेशा सिंगल ही क्लिक होता है, हमेशा सिंगल. जेंडर एक तो फीमेल रहेगी या फिर मेल या फिर ट्रांसजेंडर. सो एनी वन ऑप्शन यू हैव टू चूज, राइट. आप सब ऑप्शन चूज कर सकते हो क्या? नहीं. सो लाइक वाइज यू कैन से मैरिड और सिंगल. सो एक तो मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्सी है, लाइक दिस. सो ओनली वन ऑप्शन यू कैन चूज. जहां पे आपको सिर्फ देयर विल बी ऑलवेज वन ऑप्शन,
तो दैट टाइम रेडियो बटन इज यूज्ड. ओके, जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, यानी हमेशा एक ही ऑप्शन चूज होगा, उसे बोलते हैं रेडियो बटन. सो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल ऑल्सो यू कैन सी इन द यूजर फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म, राइट. देन चेक बॉक्स वेर यू वांट टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस चॉइस करने पड़ते हैं. यहाँ पे देखो रेडियो बटन के लिए आपको जो सिंबल होता है वो सर्कल होता है. रेडियो बटन के सामने सर्कल आएगा, यानी एक ही आप चॉइस कर सकते हैं. ओके, चेकबॉक्स के सामने आपको स्क्वायर आएगा. यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन, सो 10th पास, 11th पास, 12th पास, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, सो देयर विल बी मेनी ऑप्शंस. सो उसमें से आप चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हो कि आपका क्या क्वालिफिकेशन हुआ है. या फिर हॉबीज, आपके क्या क्या हॉबीज है, मल्टीपल हॉबीज हो सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, चैटिंग, रीडिंग बुक्स, ओके, कुकिंग, ऑल दिस आर डिफरेंट हॉबीज. तो इसमें से मल्टीपल हॉबीज आपके हो सकते हैं, राइट. तो आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो. तो दैट टाइम वी कैन यूज द चेक बॉक्स. Submit button is what? After filling whole form, you are clicking on the submit button or OK button. That is nothing but the submit button. पूरा डेटा फिल होने के बाद फॉर्म आपका सबमिट होता है, तो वो बटन जो भी क्रिएट करते हैं हम लोग लास्ट में पूरा फॉर्म सबमिट के लिए, उसको कहते हैं सबमिट बटन. लाइकवाइज वी आर गोइंग टू सी मेनी मोर कंट्रोल्स. इस तरह से हम लोग बहुत सारे कंट्रोल्स देखने वाले हैं. सो दैट इज व्हाट वी कैन से दैट फॉर्म. व्हाट इज फॉर्म? इट इज नथिंग but collection of different elements. Okay, like what we have told now just now: text box, radio button, check box, submit button. Then there will be a drop down list box. So for that we are going to use different tag, but for writing multiple line text also one tag is used. That also we will study. Okay, The form in HTML is created using form tag. तो HTML में फॉर्म किस तरह से क्रिएट किया जाता है? कौन सा टैग यूज करके? फॉर्म टैग यूज करके. ओके, कौन सा टैग यूज करेंगे फॉर्म बनाने के लिए HTML में? फॉर्म टैग. It is a container tag. Why it is a container tag? Because it is having a closing tag also. स्टार्टिंग में फॉर्म आएगा और पूरा फॉर्म का कोडिंग होने के बाद में हमको फॉर्म क्लोज करना पड़ता है. That's why it is a container tag. So I hope this is clear to you. Okay, now let's move further. Now we have seen what is form. Now let us see the attributes of form. Attributes of form tag. First attribute which we will see is name. It is used to give name to a form. अगर आपको फॉर्म को नाम देना है तो we are going to use this attribute as a name. It is just a name. This we cannot see. ये सिर्फ इंटरनली पता होता है डेवलपर को कि इस फॉर्म का नाम क्या है. ओके, जो इसको प्रिपेयर करता है, जो वेब डेवलपर या वेबसाइट जो बनाएगा, तो उसी को पता होता है कि फॉर्म को क्या नाम दिया है. ओके, इट इज यूज्ड टू गिव व्हाट? नेम टू द फॉर्म. The action attribute specifies the path where the form is to be submitted. When user clicks on submit button, if the action attribute is committed, the action is set to the current page. See, the action attribute specifies the path where the form is to be submitted. Means what? ये क्या कहता है कि अगर आपको एक यूजर डेटा एंट्री का फॉर्म दिया है, then after filling this form, you should be taken to the other side. होता है ना ऐसा कि आपने फॉर्म फिल किया तो वो आपको दूसरे साइड पे लेके जाता है. सो आपको फॉर्म फिल करने के बाद कौन से साइड पे जाना है, वो साइट हम लोग एक्शन में देते हैं. ओके, वो साइट का नाम या उसका लिंक एक्शन में प्रोवाइड करते हैं. तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो एक्शन के अंदर हम लोगों ने लिंक दिया रहेगा, उस पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा. ओके, मीन्स वो लिंक ओपन हो जाता है फॉर्म सबमिट करने के बाद. See, whatever I am teaching you right now, I think that you won't understand. जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं समझेगा. But don't worry, जब भी मैं प्रैक्टिकल कोडिंग बताऊंगी तो at that time I am going to explain all these attributes. मैं ये सारे attributes आपको करके दिखाने वाली हूँ. Okay, in the coding. So action means क्या होता है कि once the form is filled and if you want the user to means after submitting the form, the user should get the another link. Means वो दूसरे जगह पे जाना चाहिए, दूसरा फॉर्म उसके सामने ओपन होना चाहिए. तो that time उसके लिए हम लोग वो लिंक प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे? एक्शन में. सबमिट होने के बाद में आपको ये फॉर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक फॉर्म दिया है 11th स्टैंडर्ड का. ओके, फिल द डेटा
means all the details of 11th standard, and if you have passed, if you click on the submit button, then you will be means you will be given the syllabus of 12th standard. ओके, तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक्शन में आपको एक्शन आपको नहीं दिखेगा, आप डायरेक्टली सबमिट, क्योंकि ये किसने किया रहता है, डेवलपर ने। तो डेवलपर क्या करेगा, जहाँ वो कोडिंग में लिखेगा एक्शन में आपका 12th डॉट पीडीएफ या फिर 12th साइट पे लेके जाएगा 12th का, जहाँ पे आपको उसका पीडीएफ या फिर सिलेबस मिलेगा। इस तरह से जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू। ओके, सो आपने देखा ही होगा कि आप जब भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो एक एक्शन होने के बाद में दूसरा एक्शन चालू होता है या फिर दूसरा फॉर्म ओपन हो जाता है। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्शन और द पाथ विच वी गिव इन द एक्शन. So this we will come to know when we will do the coding. Then the next attribute is method. The method attribute specifies get or post method to be used when submitting the form data. Methods of form are get or post. So method attribute, what is the use of this? जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वो कौन से मेथड से फॉर्म गया है, दैट इज गेट या पोस्ट. ओके, नाउ सी बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज गेट. मेथड ऑफ फॉर्म इज बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, गेट. दो ही मेथड से फॉर्म के वो होते हैं, गेट या फिर पोस्ट. नाउ वी विल सी व्हाट इज गेट. द डिफॉल्ट मेथड ऑफ सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज गेट. सो डिफॉल्ट मेथड कौन सा बोला मैंने, गेट. ओके, द डेटा सबमिटेड बाय यूजिंग गेट इज विजिबल इन द. What is the difference between this? See, get and post. Default method is get, and whenever you submit the data, जो भी डेटा आपने फिल किया रहेगा, तो आपने जो डेटा फिल किया रहता है ना, वो डेटा आपको एड्रेस बार में दिखाई देता है, जैसे कि नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर. सो दिस डेटा यू कैन सी इट इन द एड्रेस बार. आपको वो एड्रेस बार में दिखाई देता है क्या डेटा आपने फिल किया था. ओके, दिस ऑल्सो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. ओके, सो बाय डिफॉल्ट दिस इज द गेट मेथड. बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होता है, तो आपको ये दिखाई देता है कि जो भी डेटा आपने सबमिट किया है दैट विल बी शोन इन द एड्रेस बार. ओके, देन पोस्ट. The post method of sending data does not display the form data in the address bar. Opposite of get will be the post. Post क्या करता है, जो भी डेटा आपने सेंड किया है वो हाइड करके रखेगा. So it is very good thing because it is for the security purpose. So it is secure method to submit sensitive or personal information. So पोस्ट इज व्हाट, इट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस. आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या जो इन्फॉर्मेशन आपको सबको नहीं दिखाना है, आपको हाइड करके रखना है, या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए आपको पोस्ट मेथड यूज करना अच्छा होगा. ओके, बिकॉज पोस्ट मेथड आपका डेटा एड्रेस बार में नहीं दिखाता है. ओके, सो व्हाट इज दिस मेथड. मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एंड द यूज ऑफ दिस इज व्हाट, whether to show the data in the address bar or not. Bas, that is the thing. Method it is of two types, get and post. By default it is get. Get is it is going to show the data in the address bar, and post it is going to hide the data from the data in the address bar. Okay, so these are all the attributes of the form tag. Okay, I hope this is clear to you. Name, action, method. Okay, if it is not clear also don't take tension. ये मैं फिर से आपको कोडिंग करते टाइम फिर से एक बार याद दिलाने वाली. दैट टाइम आपको थियोरी आपके सामने नहीं रहेगी, लेकिन आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नेम, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मेथड. ओके, सो नाउ लेट अस सी द इनपुट टैग. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इनपुट टैग. Now the next is the input tag. See, this input tag is used in the form itself. Okay, ये form के साथ ही use किया जाता है. Okay, so the input tag is used to specify the different types of controls by using type attribute. Okay, so input is a tag which is enclosed in the form. Form पहले लिखा जाता है, फिर उसके अंदर आपको input tag लिखना है. अंदर means जिस तरह से आप head और title लिखते हैं. Head, okay, in head title you are enclosing title tag. So head tag के अंदर आप title tag को enclose करते हो, उसी तरह से form tag के अंदर ही आप input tag enclose कर सकते हो. Okay, like that only you can enclose input tag inside the form tag. The input tag is used to specify the different types of controls. जो controls हम लोग forms में use करने वाले हैं, वो controls हम लोग को input tag में type attribute में देना पड़ता है. ओके, इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग वो कंट्रोल्स स्पेसिफाई करते हैं. सो विच कंट्रोल्स,
In forms we are using different types of controls like text box, password, then radio box, check box. All these are the different controls, and to include these controls in your form you have to write these controls in type attribute of input tag, in type attribute of input tag. Okay, so the syntax for using input tag with type attribute is, so what is the syntax? I will show you this chart. See here, these are the different type of controls which we are using with the input type attribute. input एक tag है और उसका जो attribute है वो है type, जहां पे आप जो controls है ना, text box, radio, check box, all that controls we are using, all that controls we are writing in the type एट्रीब्यूट. हम लोग एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने वाले हैं इनपुट टैग के, लेकिन आपको ये जो कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इसका यूज क्या है वो देखेंगे पहले. बाद में हम लोग इनपुट टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे. ओके, सो टाइप ऑफ कंट्रोल. फर्स्ट इज टेक्स्ट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. It creates a one line text box. So what is the use of input type text? टेक्स्ट अगर मैंने कंट्रोल यूज किया तो यहाँ पे मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स आता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेम लिखना है तो नेम लिखने के लिए मैं इनपुट टाइप कौन सा यूज कर सकती हूँ? टेक्स्ट. ओके, मुझे अगर मोबाइल नंबर लिखना है तो सी दिस फॉर्म टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? फॉर 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो, सॉरी नॉट फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका एक्सटेंशन, इसका आगे का पार्ट हम लोग, ये फॉर्म जो टैग है ये फॉर्म का आगे हम लोग और भी 12th स्टैंडर्ड में इसके एडवांस टैग्स पढ़ने वाले हैं, इसके एडवांस कंट्रोल पढ़ने वाले हैं, ऐसा बोल सकते हो. अभी इन दिस मोबाइल नंबर लिखने के लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक टाइप कंट्रोल नहीं बताया. यहाँ पे जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग मोबाइल नंबर लिखने के लिए टेक्स्ट का ही टाइप यूज करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट टाइप सपोर्ट्स बोथ न्यूमेरिकल एज वेल एज अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स. इसलिए हम लोग मोबाइल नंबर लिखने के लिए यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं. बट इन 12th स्टैंडर्ड आई एम गोइंग टू टीच यू द इनपुट टाइप. टेलीफोन नंबर मीन्स मोबाइल नंबर लिखने के लिए कौन सा टाइप होता है, दैट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इन 12th स्टैंडर्ड. सो फॉर्म टैग बहुत अच्छी तरह से याद करना, बहुत अच्छी तरह से इसका कोडिंग कर लेना, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में इसका एक्सटेंशन मीन्स इससे आगे का जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग फॉर्म्स का. ओके, सो दिस फॉर्म टैग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टैग. सो टेक्स्ट में समझा सिंगल लाइन टेक्स्ट. अगर आपको नेम लिखना है, अगर आपको एड्रेस सिंगल लाइन का लिखना है, अगर आपको सिर्फ सिंपल एड्रेस लिखना है सिंगल लाइन का, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, या फिर और एक टैग में पढ़ाने वाली हूँ जिसमें आप मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट लिख सकते हैं. ओके, सो जहाँ पे भी आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना हो दैट टाइम यू कैन यूज इनपुट टाइप टेक्स्ट. नेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो. It creates a radio button. Radio button create करता है. The radio button allows one option selection against multiple choice. सिर्फ सिंगल ऑप्शन ही आप सेलेक्ट कर सकते हो. इसका सिंबल होता है सर्कल. ओके, इसका सिंबल मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ड्रॉ करने का है. See, there is no need to draw, मीन्स आपको ड्रॉ नहीं करना है, एक्चुअली वो दिखेगा. जब आप कोडिंग करोगे तो आपको आउटपुट में सर्कल दिखेगा, तो दैट इज रेडियो बटन. एंड जो चेक बॉक्स रहता है वो स्क्वायर के टाइप में आता है. ओके, सो दिस यू कैन सी इन द आउटपुट व्हेन यू राइट द कोडिंग. ये आपको ड्रॉ नहीं करना है. ओके, सो रेडियो बटन क्या होता है? सिंगल सिलेक्शन, मीन्स यहाँ पे आप सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं कर सकते हो. आइदर दिस और दैट. ओके, मैरिड या सिंगल, then male, female, like this. Then what you can say, 11th या 10th, passed, failed, means like this. Okay, या फिर appeared ही नहीं है. Single option you can choose. So for single option you can use radio button. Input type checkbox. It creates a checkbox. It allows more than one selection against multiple choices. तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो, या जितने आपको चाहिए उतने सेलेक्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आप कर सकते हो. सो दैट इज फॉर चेक बॉक्स. इनपुट टाइप सबमिट. डिस्प्ले से बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू अ सर्वर. जो भी डेटा आपने एंट्री किया है वो एट लास्ट आपको सबमिट करना पड़ता है सर्वर को. तो वो हम लोग किस तरह से सबमिट करेंगे? इनपुट टाइप सबमिट बटन देने के बाद वो सबमिट होता है. ओके,
Then input type password. Password means what? The password input type is used to create text contains in the form of asterisk और dice. ओके, डिस्क नॉट डाइस, सॉरी, डिस्क. तो आपको पासवर्ड पता है स्टार में या फिर डॉट में रहता है. तो अगर आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना है तो दैट टाइम यू कैन यूज इनपुट टाइप पासवर्ड. Input type reset. The reset control clears the text content entered in the form. Reset means क्या होता है? सपोज आपने एक फॉर्म फिल किया, फिर आपको लगा नहीं मेरे ये सारे जो डिटेल्स जो मैंने फिल किए वो करेक्ट नहीं है, तो आपको एक एक डिलीट करने का जरूरत नहीं. रीसेट का बटन रहेगा, रीसेट करो तो रीसेट क्या कर देगा, आपने जो भी लिखा है वो पूरा कंटेंट्स क्लियर कर देगा. ओके, यानी डिलीट कर देगा, फिर से आप नया एंटर कर सकते हो. Input type button, it displays a push button which activates on events. तो input type button ये एक ऑप्शन होता है कि दिस इज अ पुश बटन, मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन विच एक्टिवेट्स ऑन इवेंट्स. मीन्स अगर कोई इवेंट लिखा होगा, ऑन माउस क्लिक, ऑन कीबोर्ड क्लिक, ऑन माउस ऑन या कीबोर्ड डबल क्लिक, माउस डबल क्लिक, ऐसा आपने इवेंट दिया रहेगा तो दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज दिस input type button. Okay, so this is not there, just to know that what it is input type button. This we are not going to see in the coding part, लेकिन ये events के लिए होता है. It is a click event button, यानी अगर माउस डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, या फिर कीबोर्ड से अगर एंटर किया, this type. Okay, so that is a events. Okay, so these are the controls like text, radio, checkbox, submit, password, reset and button. Okay, these are the different controls which are used in the forms for performing the different actions. Okay, now let's move further and see the another tag. Okay, attributes of input tag. Okay, now we have seen about the input tag. Now we will see the attributes of input tag only, not another tag. Sorry for that. We will see the attributes of input tag first, then we will see the new tag. Okay, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइप. अभी जो हम लोगों ने टाइप बोला ना, जो कंट्रोल्स, टेक्स्ट बॉक्स, वो सब कहाँ पे डालना है, तो वो आपको टाइप में डालना है. ओके, इट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द कंट्रोल लाइक टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स एक्सेट्रा. तो आपको रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, रीसेट, बटन, ये सब अगर आप कंट्रोल्स देने हैं तो आपको टाइप एट्रीब्यूट इनपुट का होता है, वहां पे लिखना पड़ता है. ओके, कौन से टाइप का आपका कंट्रोल है. देन नेक्स्ट, नेम. ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम. तो जो भी इनपुट फील्ड आप लिखते हो, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स या रेडियो या चेक बॉक्स, ये कौन सा भी कंट्रोल या कौन सा भी इनपुट टाइप का फील्ड आप लेते हो, तो आपको उनको नाम देना कंपलसरी है. ओके, नाम देना इज कंपलसरी. द नेम एट्रीब्यूट इज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू. ये जो नेम आप देते हो वो आप डिफाइन करते हो. आप यानी जो वो क्रिएट कर रहा है, जो फॉर्म वो कोई जो पर्सन उसे क्रिएट कर रहा है, सो उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड वैल्यू. मीन्स जिसने बनाया उसने उसको डिफाइन किया है, उसने उसको नाम दिया है. ओके, सो इट इज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू. सो आपको ये करना कंपलसरी है. सो यू शुड गिव द नेम. मैक्स लेंथ. दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद द टेक्स्ट एंड पासवर्ड टाइप. तो मैक्स लेंथ ये सिर्फ कौन से कंट्रोल के साथ यूज होता है? मैक्स लेंथ ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड के साथ ही यूज होता है. ओके, मैक्स लेंथ. दिस एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टाइप tag is used only with text and password, but not with radio, checkbox, submit और what you can say reset button. इनके साथ यूज नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट और पासवर्ड के साथ ही यूज होता है. It specifies the maximum number of characters which can be entered in a text or password box. What is the meaning of max length? Max length ये कहता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स आपके टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड के लिए चाहिए, वो उतना ही अलाउ करेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर लिखा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 5. ओके, आपने मैक्स लेंथ 5 दिया है और जब आप डेटा एंटर कर रहे हो और आपने 5 से ज्यादा कैरेक्टर का नाम लिखा, तो वो लास्ट वाला डिजिट कट कर देगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 5 लेटर्स ही वो लेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम राइटिंग मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 4. ओके, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 4 और मैंने नाम पे एंटर किया है श्वेता, मैंने TA, लेकिन श्वेत तक ही नाम आएगा. क्यों ए नहीं आएगा? क्योंकि श्वेत 4 कैरेक्टर्स का है और श्वेता 5 कैरेक्टर्स का है और मैक्सिमम लेंथ कितना बोला है? 4 कैरेक्टर्स. तो इसलिए उसने स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले की.
ओके, सो दिस एट्रीब्यूट व्हाई वी आर यूजिंग कि कितना कैरेक्टर्स डिस्प्ले करना चाहिए वो भी आप लिमिटेशंस दे सकते हो पासवर्ड के लिए और टेक्स्ट बॉक्स के लिए। बाकी किसी के लिए भी ये लिमिटेशन या ये एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन, साइज। सी साइज एंड मैक्स लेंथ इज डिफरेंट। मैक्स लेंथ मीन्स कितना कैरेक्टर्स एंटर करना है और साइज मीन्स साइज ऑफ द बॉक्स। बॉक्स जो आता है टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड का वो साइज कितना होना चाहिए। सी दिस एट्रीब्यूट इज ऑल्सो यूज विद टेक्स्ट एंड पासवर्ड टाइप। मैक्स लेंथ दोनों, सिर्फ ये दोनों एट्रीब्यूट किसके साथ यूज होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट और पासवर्ड, टेक्स्ट एंड पासवर्ड। ये बाकी किसी भी कंट्रोल्स के साथ यूज नहीं होते। कंट्रोल्स बोलेगे तो आपको आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि फॉर्म्स के कौन से कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, चेक बॉक्स, देन सबमिट बटन, रीसेट बटन, ओके, बटन, दिस आर ऑल द कंट्रोल्स। ओके, तो इनके साथ मैक्स लेंथ और साइज किसके साथ जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट और पासवर्ड के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं जाएगा। ओके, तो ये साइज का मतलब क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो समझा, विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स मींस साइज टेक्स्ट बॉक्स। आई विल शो यू द विड्थ आल्सो। सी, दिस इज कॉल्ड एज अ विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो इसका साइज सपोज 10 था ये बॉक्स का, तो ये इतना आया, और इसका साइज सपोज 15 था तो ये इतना आया। ओके, सो ये इससे विड्थ में बड़ा हो गया। तो दिस इज द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का साइज होगा, दैट इज साइज। लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स इनपुट करते हैं वो अगर हमको लिमिटेशन देना है तो आपको मैक्स लेंथ यूज करना पड़ेगा। ओके, और टेक्स्ट बॉक्स का लेंथ कितना होना चाहिए उसके लिए आपको साइज देना पड़ेगा। So I hope this is clear to you. Okay, I'll just rub out this. Next attribute is checked. This attribute specifies the default selection for options in a checkbox or ready button. Now see, this checked. This checked attribute ये सिर्फ किसके साथ आता है, ये सिर्फ रेडियो बटन और चेक बॉक्स के साथ आएगा। चेक्ड किसके साथ आता है, सिर्फ चेक बॉक्स और रेडियो बटन, बाकी किसी के साथ नहीं आएगा। ये एट्रीब्यूट जो चेक्ड है ये सिर्फ यानी चेक बॉक्स और रेडियो बटन। अगर आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन करके रखना है, बाय डिफॉल्ट कोडिंग जैसे में आपको सिलेक्शन करके रखना है, तो आप चेक्ड करके कर सकते हो उसके सामने। दैट दिस ऑल थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इन द कोडिंग पर। कोडिंग सपोज आपने अगर आप क्रिएट किया और आपने चेक्ड, सपोज जेंडर के लिए हम लोग अगर लिख रहे हैं मेल फीमेल, तो आपने कोडिंग किया और आपको लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट इट शुड बी मेल और बाय डिफॉल्ट इट शुड बी फीमेल, तो आप फीमेल के सामने आप चेक करोगे और मेल के सामने आप चेक करोगे। मीन्स जो भी आपको चाहिए कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन ये ही आना चाहिए। या फिर स्टेटस मैरिड और सिंगल, इसमें भी अगर आपको बाय डिफॉल्ट आपको सिंगल लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल के सामने आपको चेक्ड देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कि दैट विल बी बाय डिफॉल्ट। ये हो गया रेडियो बटन का। लेकिन सिमिलरली चेक बॉक्स के लिए भी आप बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको हॉबीज आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, रीडिंग, प्लेइंग म्यूजिक एंड ऑल दिस, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको चेक करना रहेगा, तो आप उनके सामने चेक्ड लिख सकते हो। ओके, सो दैट इज अ बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन। यानी कोडिंग के टाइम ही आप उसको चेक्ड करके लिखोगे, तो जब आप आउटपुट देखोगे तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ दिखेगा आपको। यस, लेकिन आप उसके बाद आउटपुट के बाद आउटपुट में चेंज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन है आपको तो यस, वी कैन चेंज द ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, this is the last attribute of input tag, that is value. This attribute can be used with text, checkbox, radio, submit और reset. तो value, this attribute can be used with ऑल ऑफ दिस, ये सबके साथ यूज किया जाता है क्योंकि जितने भी कंट्रोल्स है उन सबके साथ हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। तो ये वैल्यू क्या होता है कि जो आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। ओके, इसके लिए नहीं, चेकबॉक्स एंड रेडियो इसके लिए नहीं, लेकिन सबमिट, रिसीट और टेक्स्ट जब आप लिखते हो और आउटपुट में आपको नेम बाय डिफॉल्ट आपने अगर वैल्यू में डाला नाम, जो भी नाम डालोगे आप सपोज, तो वो आउटपुट में दिखाई देता है। ओके, वैल्यू में अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स नेम
नेम के लिए अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स दिया है और उसके लिए वैल्यू लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट आपको आउटपुट में दिखाई देगा। आई नो कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब बाउंस हो रहा होगा, आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको ये सब समझेगा कि व्हाट आर दिस एट्रीब्यूट्स, इसको किस तरह से यूज किया जाता है, इसका कैसे आउटपुट दिखता है, ये क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये सब हम लोग कोडिंग में देखेंगे कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं। आई विल शो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द टैग्स, मीन्स फॉर्म्स के भी एट्रीब्यूट्स सब दिखाऊंगी और इनपुट के भी जो है वो, और आगे जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। Now see, this is a text area tag. This is also included in the form type, लेकिन ये input type के साथ नहीं आता है। जिससे input type, this is also one of the control only of the form. ये भी एक तरह से form का control ही होता है। ये form tag के अंदर ही use कर सकते हैं, लेकिन इसको input टाइप में लिखने का जरूरत नहीं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट एरिया ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट टैग विच यू कैन यूज इट अलोन, यानी इसको इनपुट टाइप देने का जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ टेक्स्ट एरिया टैग लिख सकते हो। और इसका यूज क्या है? जो कंट्रोल हम लोगों ने इनपुट टाइप में देखा था टेक्स्ट, दैट वाज फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट। अगर मुझे सिंगल लाइन का टेक्स्ट लिखना है तो इट वाज गुड, लेकिन अगर मुझे बहुत सारे मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए मैं कौन सा कंट्रोल यूज करूँ? तो उसके लिए फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? टेक्स्ट एरिया। ये जो टेक्स्ट एरिया होता है इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। अगर किसी को फॉर्म में इंक्लूड करना है कि राइट योर कमेंट्स, राइट योर गिव योर फीडबैक, ये सब ऑप्शंस रहते हैं, या फिर राइट योर स्किल्स, तो दैट टाइम आपको मल्टीपल लाइंस लिखने पड़ते हैं। तो राइट अबाउट योर सेल्फ, तो मल्टीपल लाइंस का टेक्स्ट लिखने के लिए आपको सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आप यूज नहीं कर सकते हो, तो दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज दिस टेक्स्ट एरिया टैग। वहां पे हम लोग को ये टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करना है। See, the text area is used to create text box with multiple lines. So, just now I told you multiple lines अगर आपको text box चाहिए तो multiple lines के लिए आपको text area tag का use करना है। Then, attributes of text area. अभी इस text area tag के भी कोई attributes होंगे तो वो भी देख लेते कि क्या है। नेम सेम इनपुट टाइप में भी हम लोग ने ये एट्रीब्यूट पढ़ा है, इनपुट टैग में भी हम लोग ने ये एट्रीब्यूट पढ़ा है। नेम, इट इज गिविंग नेम टू द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो बनाओगे तो उसके लिए नाम देना है, तो दिस इज यूज्ड फॉर गिविंग द नेम टू द टेक्स्ट एरिया बॉक्स। ये नाम आपको आउटपुट में नहीं दिखाई देता है, सिर्फ यूजर हु हैज क्रिएटेड दिस फॉर्म ओनली कैन सी द नेम। ओके, रोज, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ लाइन्स इन द टेक्स्ट एरिया। रोज क्यों यूज करना है? अगर आपको कितने लाइन्स चाहिए टेक्स्ट एरिया में तो वो आप रोज में दे सकते हो। उसी तरह से कॉल्स, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया। ये कॉलम्स नहीं देगा, ये आपको विड्थ देगा, ये टेक्स्ट एरिया का बॉक्स कितना विड्थ में होना चाहिए वो कॉल स्पेसिफाई करता है। सो सी, ये रोज और कॉल्स में दिस आर ऑप्शनल। rows and calls, these are what? Optional. Name is compulsory, give the name, but rows and calls, these are optional things. ये आपने नहीं दिया तो भी बाय डिफॉल्ट जितना लाइंस, जितना रोज लेना है और जितना बिट लेना है टेक्स्ट एरिया का उतना वो लेगा। ओके, देन मैक्स लेंथ, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन द टेक्स्ट एरिया। सिमिलरली जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को कितना कैरेक्टर्स लिखना है वो हम लोग मैक्स लेंथ दे सकते हैं। ओके, देन प्लेस होल्डर, इट स्पेसिफाइज अ शॉर्ट हिंट दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। प्लेस होल्डर मीन्स व्हाट एक्चुअली, ये क्या काम करता है? ये हिंट देता है। ओके, देखो आपने देखा रहेगा कभी कभी कि एरो दिखेगा और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिख के आया रहेगा कि इसमें आपको क्या एंटर करना है, दैट इज नथिंग बट प्लेस होल्डर। ओके, तो टेक्स्ट एरिया में भी अगर सपोज आपको एड्रेस एंटर करना है तो वो प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो एड्रेस करके, तो वो हिंट रहेगा यूजर के लिए, जो डेटा एंटर कर रहा है उसके लिए वो एक हिंट आएगा कि यहाँ पे आपको एड्रेस एंटर करना है। ओके, सो दैट इज अ प्लेस होल्डर, दैट इट जस्ट गिव्स द हिंट टू द यूजर। ओके, कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको। सो लास्ट एट्रीब्यूट इज required. It specifies that text area must be filled out, that is it cannot be blank. Required means what? ये कंपल्सरी बना देता है कि आपको
लिखना ही है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ते हो। आपने देखा रहेगा कुछ ऑनलाइन पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने एस्ट्रिक मार्क आपके क्वेश्चन के सामने रहेगा रेड कलर का, दैट इंडिकेट्स दैट दे आर द रिक्वायर्ड फील्ड्स, मीन्स इट इज कंपल्सरी दैट यू शुड सॉल्व द आंसर, मीन्स यू शुड गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप अगर वो नहीं करोगे, आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन का आंसर, और आप लास्ट में सबमिट करने की कोशिश करोगे तो भी आपका पेपर सबमिट नहीं होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि रिक्वायर्ड मीन्स कंपल्सरी होता है, तो आपने कौन सा भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया रहेगा, आंसर नहीं दिया रहेगा। सो रिक्वायर्ड मीन्स व्हाट, इट इज कंपल्सरी, कि वो आपको फिल करना ही है। ओके, सो सी ऑल दिस एट्रीब्यूट्स आर what, they are not compulsory, they are optional. If you want you can give, otherwise leave it, no matter. Okay, so सिर्फ name is a compulsory thing, because नेम वाइड इज कंपल्सरी, क्योंकि आपने अगर फॉर्म का डेटा पूरा फिल किया, आपने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया है और आपने पूरा डेटा लिखा है और सबमिट कर दिया, तो आपका जो डेटा है ना वो सर्वर में सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने नेम नहीं दिया था इसीलिए। ओके, नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया था इसीलिए। सो ये काम होता है डेवलपर का, दिस इज यूजर का काम नहीं है ये। ओके, जो डेटा एंटर कर रहा है उसका काम नहीं है। सो आप जो बना रहे हैं उसको, सो वो क्या करेगा, अगर उसको चाहिए कि जो भी डेटा यूजर लोग डेटा एंटर कर रहे हैं उसका डेटा वो सेव होना चाहिए सर्वर में, तो उसको नाम देना पड़ेगा। ओके, डेवलपर को नाम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल दिस थिंग्स आर ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन गिव इट, अदरवाइज नो नीड। Okay, but then also we will see all these attributes in our practical session. Practical means when I will write the coding, when I will give you the coding. Okay, in the next lecture. Now, this is a text area tag. Now let us see the last tag of this video or of this chapter. Yes, it is a select and option tag. Now this select and option tag, this select tag, I will talk about select tag first. Select tag is also inside which tag? Form tag. Form tag के अंदर ही आप select tag को use कर सकते हो, form tag के बाहर select tag को आपको use नहीं करना है, ये form का एक part होता है। Okay, and option tag is included in the select tag. Option tag किसके अंदर लिखा जाता है? Select tag के अंदर। means select tag स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग के बीच में ऑप्शन टैग आपको देना पड़ता है। What is the use of select and option tag? Can you whenever you see any website and whenever you see any form, you can see the drop down list. आपको कभी drop down list दिखाई दिया रहेगा, आप वो एरो पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट पूरा ऐसे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, जैसे कोर्सेस, डिफरेंट कोर्सेस ऑफर्ड इन द कॉलेज, ऐसा अगर रहेगा, या फिर ये कॉलेज का आपने वेबसाइट ओपन किया, सो वहाँ पे कौन से कोर्सेस है, वैसा उसके सामने आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखाई देंगे, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BMS, then what MCom, MSc, BSc, plain BCom, BA, all these different courses which are offered by the colleges will be given in the drop down list. So वो जो drop down list होता है वो बनाने के लिए हमको select tag यूज करना पड़ता है। और जो ऑप्शंस मैंने बोले ना अभी, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, वो ऑप्शंस हमको यहाँ पे ऑप्शन टैग के यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन टैग इज यूज्ड इनसाइड द सेलेक्ट टैग, एंड सेलेक्ट टैग ये कहाँ पे इंक्लूड होता है? फॉर्म के अंदर। फॉर्म का टैग नहीं यूज करोगे तो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग द सेलेक्ट टैग। ओके, नाउ select tag is used to create drop down list. What is the use of select tag? Drop down list बनाने के लिए। Attributes of select tag. First, compulsory name, assigns name to the control. आपको नाम देना है, compulsory. Okay. Then multiple, it allows the user to select more than one value. What is the use of this multiple? See, जब आप ड्रॉप डाउन करते हो तो आप कौन सा भी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बराबर है। आप 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट करते हो क्या? जब आप एक के ऊपर क्लिक करते हो तो जब दूसरा सेलेक्ट करते हो तो पहला वाला क्लिक चला जाता है। लेकिन अगर आपको एक ही टाइम पे 2 या 3 जो भी सिलेक्शन करना है, अगर वैसा करना है तो आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा सेलेक्ट टैग में मल्टीपल। अगर आपने मल्टीपल एट्रीब्यूट सेलेक्ट में दे दिया तो आप एक टाइम पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट इज मल्टीपल।
मल्टीपल मीन्स ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ऑप्शंस लिख सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम लोग सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो आपको कोडिंग में एट्रीब्यूट मल्टीपल देना पड़ेगा, जिससे कि आप मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो, आप या फिर यूजर। ओके, देन size. The size attribute is used to specify the number of visible values. Now ये size क्या होता है, कितना ड्रॉप डाउन लिस्ट में एट अ टाइम कितने ऑप्शंस एक साथ दिखने चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो हमेशा एक ही दिखता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमेशा एक ही दिखेगा। जो आप सेलेक्ट करेंगे एक तो वो ऊपर आ जाएगा, या बाय डिफॉल्ट विदाउट सेलेक्टिंग जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही दिखेगा। ओके, लेकिन अगर आपको चाहिए कि एट अ टाइम आपको 2 दिखने चाहिए, 3 दिखने चाहिए, 4 दिखने चाहिए, तो वो आप साइज में डाल सकते हो। अगर आपने साइज में 2 दिया, मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ रहा है, फिर भी सी। Now see here, suppose in drop down list I am writing different country names like India, UK, USA, likewise. Okay, but when you see the list, that time first thing you can see only this means India ही आपको दिखेगा drop down list में। Okay, this is why this is a by default आपको सिर्फ सिंगल ही ऑप्शन दिखता है। जो ऑप्शंस आपने लिखे रहते हैं उसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा सिर्फ वो ही दिखेगा, या फिर आप जो सेलेक्ट करोगे, अगर आपने यूके सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ यहाँ पे यूके दिखेगा। जब आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे या ये एरो पे क्लिक करोगे, दैट टाइम यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, फिर उसमें से आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आपने साइज दिया, आपने लिखा साइज इज इक्वल टू 2, तो आपको कितने ऑप्शन दिखेंगे एट अ टाइम। यहाँ पे अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो मैंने अगर साइज इज इक्वल टू 2 दिया तो मुझे कितने ऑप्शन दिखने चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दिखने चाहिए, इंडिया एंड यूके एट अ टाइम। फिर अगर मैंने उसके बाजू में जो स्क्रॉल बार है उसको क्लिक किया तो नेक्स्ट 2 ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे, यूके एंड यूएसए। ओके, तो इस तरह से आपको एट अ टाइम कितने ऑप्शन दिखाई देंगे, 2। जो साइज में हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4 जो भी है, तो एट अ टाइम उतने ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। दैट इज द यूज ऑफ साइज। एंड मल्टीपल मीन्स व्हाट, अगर मैंने यूके सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट मैंने मल्टीपल नहीं दिया, तो मैंने अगर यूके सेलेक्ट किया तो सिर्फ यूके सेलेक्ट होगा। यूके के बाद मैंने यूएसए सेलेक्ट किया तो यूके से सिलेक्शन हट जाएगा और यूएसए पे आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैंने एट्रीब्यूट मल्टीपल दिया तो मैं यूके भी सेलेक्ट कर सकती हूँ और मैं यूएसए भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ये कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के। ओके, by pressing the control button on the keyboard you can select multiple options. Okay, that is the use of multiple. So I hope this is clear to you. Okay, now option tag, I will rub this.
Okay. Now option tag. The option tag inside the select tag defines the available options in the list. सो ऑप्शन टैग ये हम लोग सेलेक्ट टैग के अंदर लिखते हैं और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है लिस्ट में उसके लिए हम लोग ऑप्शन टैग का यूज करते हैं. अभी जो मैंने लिखा था कंट्रीज के नाम इंडिया, यूएसए, यूके, ये हम लोग को कहाँ पे लिखना पड़ेगा? ऑप्शंस. ओके. सो ऑप्शंस वी आर यूजिंग फॉर राइटिंग द लिस्ट आइटम्स. जो भी लिस्ट आइटम्स होते हैं लिखने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो सब लिस्ट आइटम्स आप ऑप्शन टैग में लिख सकते हो. ओके. देन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑप्शन टैग. Selected. To define pre-selected options, selected attribute is added to the option tag. अगर आपको by default जो भी कंट्री का नाम या जो भी लिस्ट आप दे रहे हो उसमें से बाय डिफॉल्ट अगर सिलेक्शन करना है तो आप उसके सामने सेलेक्टेड लिख दो तो वो ऑप्शन आउटपुट में बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होके आएगा. जिस तरह से रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं? चेक्ड. ओके. रेडियो और चेक बॉक्स के लिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन के लिए हमको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना बताया? चेक्ड. उसी तरह से ऑप्शन टैग के लिए अगर मुझे बाय डिफॉल्ट कोई लिस्ट आइटम सेलेक्ट करके रखना है तो मुझे एट्रीब्यूट देना पड़ेगा सेलेक्टेड. ओके. सो एंड द सेकंड इज वैल्यू. It assigns value to the option specified in the drop down list. So जो भी वैल्यू आपको असाइन करनी है वो आपको वैल्यू किस में लिखनी है? वैल्यू में लिखना है. ओके. वैल्यू असाइंड स्पेसिफाइड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो वैल्यूज है वो आपको अगर असाइन करके रखने हैं फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शंस, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज द value attribute. Okay. So this is all about the select and the option tag. So the select and the option tag, they are used for the drop down list which is also a part of the form only. ये भी form का ही part होता है. Okay. So even if today whatever I have taught to you is not clear to you, don't worry. In the next lecture I am going to teach the coding of forms. फॉर्म को दिखा के हम लोग कोडिंग लिखेंगे. एक यूजर डिफाइंड फॉर्म हम लोग देखेंगे आउटपुट और उसके ऊपर बेस्ड हम लोग कोडिंग लिखेंगे. जिस तरह से हम लोगों ने टेबल का आउटपुट देख के उसके ऊपर से कोडिंग लिखा था, सिमिलरली फॉर द फॉर्म ऑल्सो आई विल गिव यू द फॉर्म output and by seeing that form output we will write the coding. Okay. So that all the concepts of this tags and its attributes will be clear to you. Okay. So this is all for today. Thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.